Jai Hind everyone. In the previous video we have done the numericals based on the work and energy. So today we will do the numericals based on the types of energy, that is the kinetic energy and potential energy. So our first numerical is find the energy possessed by an object. हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है ऑफ मास 10 kg. मास कितना गिवन है? 10 kg. mass, that is m equals to 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. कि हमें उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है कब? जब उसका मास है 10 kg और ऑब्जेक्ट कितनी हाइट के ऊपर है? 6 मीटर. सो द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज हाइट, that is h equals to 6 meter. And we are given the value of g also, that is 9.8 meter per second square. So since m is given, g is given, we will write here g also, that is 9.8 meter per second square. M given, g given, h given. So we have to find the energy. So which energy we will find? That is the potential energy. The formula of potential energy is mgh. So the potential energy will be m, mass is 10 kg, 10 multiply, the value of g is 9.8 multiply by h, height is 6 meter. So it will be 10 multiply by 98 multiply by 6. We will point हटाएंगे, नीचे आ गया 10 से 10 cancel. So the kinetic potential energy will be 98 multiplied by 6 equals to 6 8s are 48, carry 4, 6 9s are 54 or 4 58 joules. Hence the potential energy of the object will be 588 joules. So second numerical is a body of mass 4 kg is taken from a height of 5 meter to a height 10 मीटर. कि एक बॉडी थी हमारे पास जिसका मास था 4 kg, उसको 5 मीटर की हाइट से 10 मीटर की हाइट तक ले जाया गया. फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. हमें क्या निकालना है कि जब वो 5 मीटर पे थी और 5 मीटर से जब 10 मीटर की हाइट पर चली गई तो जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो हेयर वी विल टेक द टू केसेस, केस 1 एंड केस 2. In first case, mass m is 4 kg, the value of h, height. फर्स्ट केस में हाइट कितनी लेंगे? पहले 5 मीटर and the value of g is given 10 meter per second square. So here we will calculate the potential energy equals to mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी, मास इज 4 kg, वैल्यू ऑफ जी इज 10, h is 5 meter. So 5 4 जा 20, 0. Hence the in first case potential energy will be 200 joules. Now coming to the second case, mass will remain same. Mass is same because the body is same, so mass will also be same. Height is again, now here height was taken to 5 meter, but here we will take the height to 10 meters. कि उसको 10 मीटर की हाइट पर 5 मीटर से 10 मीटर की हाइट पर ले जाया गया. द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन सेम, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हेयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एच इक्वल्स टू मास इज 4, वैल्यू ऑफ जी इज 10, हाइट इज ऑल्सो 10. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 400 joules. Now we have to calculate the increase in potential energy. So increase in potential energy equals to, इस एनर्जी में से that is 400 joules में से फर्स्ट केस की माइनस कर देंगे 200 joules. So the increase in potential energy will be 200 joules. So next we will move on to the third numerical. It says that an object of mass 12 kg, ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा हमें? मास इज गिवन, that is m equals to 12 kg is at a certain height above the ground. कि एक certain height के ऊपर क्या है वो, तो हमें height है वो नहीं given है, certain height बोल दिया, that is height h is not given, so we have to calculate here h also. If the potential energy of the object is 480 joule, given क्या है? potential energy कितनी दे रखी है? 480 joules.
फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, की ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है. सो वी नो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh. Potential energy is 480 equals to mass is 12. The value of g is 10 into में h. So we have to calculate the h. So 480, 12 और 10 है वो इधर डिवाइड में आ जाएंगे. 10 से 10, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48. So height will be 4 meter. So the height at which the object is 4 meter above the ground. So now we will do the fourth numerical. Now fourth numerical, it says that a 5 kg ball, it means the mass is given, mass m equals to 5 kg is thrown upwards. उस बॉल को क्या किया जाता है, 5 kg की जो बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है with a speed of 10 meter per second. It means velocity is given, velocity of the ball, that is v equals to 10 meter per second. Velocity is given. Since m and v are given, here we will calculate the kinetic energy. तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. तो kinetic energy कितनी होगी, 1/2. मास इज 5 एंड v का स्क्वायर मीन्स 10 का होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 इंटू में 5 इंटू 10 इंटू 10. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. So kinetic energy will be 5 5 जा 25 into 10, 250 joule. Now we will come back to the first part, that is what we have to calculate. Find the potential energy when it reaches the highest point. Here we have calculated the kinetic energy, but what we have to calculate, we have to calculate the potential energy. But there is a condition. Condition क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी तब निकालनी है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए. कि मान लो हमने कोई बॉल थी उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे हमने फेंका तो उसके अंदर क्या डेवलप हो गई, काइनेटिक एनर्जी, कि वो मूव कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने फेंका यहाँ पर, ए पॉइंट पर बॉल थी, बी पॉइंट पे फेंका, तो यहाँ तक जब पहुँचेगी तो यहाँ तक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चलेगी. लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट बी पॉइंट पर जब वो पहुँच जाएगी तो क्या होगी, वो फिक्स. अब वो मूवमेंट के अंदर नहीं है, मूवमेंट के अंदर नहीं होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी. इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में. सो हियर वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 250 जूल्स. तो पोटेंशियल एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी वो कितनी हो जाएगी, 250 जूल्स. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. सिंस वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एनर्जी, now we have to calculate the maximum height. So we know potential energy equals to mgh. Potential energy is 250 joules, mass is 5 kg, the value of g is 10 meter per second square, and we have to calculate the height. So h will be equals to 250. ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में. तो 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. तो हाइट विल बी 5 मीटर. सो द हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विल बी 5 मीटर. सो नाउ coming to the fifth numerical, a 5 kg ball is dropped from a height of 10 meter. मतलब कि एक 5 kg की जो बॉल थी उसको एक 10 मीटर की हाइट से हमने गिरा दिया. तो इट मीन्स व्हाट इज गिवन, मास m equals to 5 kg. Second, what is given, height, that is h equals to 10 meter. So here we can calculate, what we have to calculate, part A is find the initial potential energy of the ball. तो A पार्ट का आंसर होगा, हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, mgh. तो मास कितना है 5, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h इज 10 मीटर. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 500 joule. Potential energy will be 500 joule. Now
कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर बी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर पहुंचने से पहले हमें उसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जैसे ऑब्जेक्ट था वो ऊपर की तरफ फेंका था पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें क्या किया था कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जैसे ऊपर फेंका तो उसके अंदर क्या आई, काइनेटिक एनर्जी, और जब वो सर्टेन हाइट, एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गया तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई थी। तो यहाँ पर केस उल्टा है कि अब हमें क्या है, हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हाइट के ऊपर, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट था मेरा, ये ए यहाँ पर ए पोजीशन के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है, ए पोजीशन पर, इसको हमने नीचे की तरफ फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, तो अभी इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये बी पॉइंट मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल, ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पर जब पहुंचेगा तो ग्राउंड लेवल पर रेस्ट पोजीशन, यहाँ पर भी रेस्ट पोजीशन में है और यहाँ पर भी ग्राउंड लेवल पे क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में, तो यहाँ पर भी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कब, जब इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया ए पोजीशन से और बी तक वो पहुँचा नहीं है, बी से पहले, मतलब इसके बीच में उसकी हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, ड्रॉप किया तो वो मोशन में आया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उस ऑब्जेक्ट के पास वो किस में चेंज हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी में। सो पार्ट बी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू 500 joules. So the kinetic energy of the object just before it reaches the ground will be 500 joules. Now coming to the last part कि calculate the velocity before it reaches the ground. हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी निकालनी है। अब तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 500 इक्वल्स टू 1/2 मास गिवन इज 5 kg इंटू में v स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 500 2 है वो ऊपर चला गया, नीचे आ गया 5, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 5 1 5 5 1 5 00 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, v, तो v कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में चला जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ v इक्वल्स टू 2, तो √2 यहाँ पर आ गया सिंपली, और 100 को अगर हम रूट में लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। 100 को रूट से बाहर लेंगे तो वैल्यू क्या आई, 10। तो v इक्वल्स टू √2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई बाई 10. So the final velocity, or we can say the velocity before it reaches the ground will be 14.14 meter per second. This will be the velocity before it reaches the ground. Now next numerical number 6 क्या कहता है कि a body is thrown up, कि एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका with a kinetic energy of 10 joule, मतलब गिवन क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल इफ इट अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, हाइट दैट इज h इक्वल्स टू 5 मीटर। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, हमें क्या निकालना है, बॉडी का मास। अब मास इससे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अगर वेलोसिटी गिवन होती तो हाफ mv स्क्वायर का देखते, काइनेटिक एनर्जी गिवन होती, v हमारे पास होता तो हम m निकाल देते, लेकिन अभी हमारे पास v की बजाय क्या है, ओनली हाइट है। तो इसका मतलब h हमारे पास है, मास हमारे पास निकालना है हमें, और g की वैल्यू अगर और तो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कहता क्या है कि विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल इफ इट अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो किया था हमने उसमें देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो मोशन में होता है, और जब वो एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, यहाँ पर क्या गिवन है, मैक्सिमम हाइट। तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 में किया था कि मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 10 जूल एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg
h पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल, मास हमें निकालना है, g की वैल्यू होती है 10, हाइट इज 5 मीटर, हाइट इज 5 मीटर। तो हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं 10, ये यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में 10 से 10 कैंसिल, m इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो hence the mass will be 0.2 kg. So the mass of the body will be 0.2 kg. Now the last numerical on kinetic energy and potential energy. What is it says? A rocket of mass 3 × 10⁻6 kg, कि एक रॉकेट है उसका मास है 3 × 10⁻6 kg, टेक्स ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग पैड, एक लॉन्चिंग पैड से ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर जाता है, एंड एक्वायर्स ए वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ, और जब वो टेक ऑफ करता है तो कितनी स्पीड से, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर, और कितनी हाइट पर पहुंच जाता है 25 किलोमीटर की हाइट पर वो पहुंच जाता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिखेंगे, दैट इज मास m इज गिवन, दैट इज 3 × 10⁻6 kg। नेक्स्ट वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी दैट इज v इज गिवन, वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, तो वेलोसिटी को हमने मीटर में पर सेकेंड में बदल दिया, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर में बदला तो 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज गिवन एल्टीट्यूड, दैट इज द हाइट, दैट इज द हाइट, दैट इज h इज गिवन, दैट इज 25 किलोमीटर। हाइट जो होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं हम, और उसकी यूनिट SI यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 25 किलोमीटर में 25,000 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, हियर वी विल राइट द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पार्ट ए वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज, फॉर्मूला क्या होता है mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, मास गिवन इज 3 × 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई g इज 10, g की वैल्यू 10, h हाइट इज 25,000 मीटर। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट टू 25 3 जा 75 × 10⁻6 प्लस 1 7 और 3 10, 75 × 10⁻10. We can also write it as potential energy equals to 7.5 × 10⁻11 joule. Hence the final potential energy of the object is 7.5 × 10⁻11 joule. This is part A. Now coming to the second part, what we have to calculate the kinetic energy. So we know kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1/2, मास कितना है हमारे पास 3 × 10⁻6 इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो 1000 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 × 3 × 10⁻6 इंटू 1 2 3, इसको और करेंगे तो फिर से 1 2 3। सो वी कैन राइट 3/2 × 10⁻6, 6 3 9 और 3 12, 10 की पावर 12। सो द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, इसको डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो 1.5 × 10⁻12 जूल। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द object. So this is all about today's lecture. In the next video we will study about the energy possessed by a free falling body and we will do the numericals based on the power. Till then, thank you so much.